Every atom of her is made of Krishna prem. So when we chant Radharani's name, that prem which Radharani has for Krishna is going to transfer in our heart. And the one sprinkle of that prem, one cheetah of that prem is so powerful that our soul will be fully satisfied, pleased. And our soul is looking for this love. For millions and millions of lifetimes, our soul is looking for only and only this love, which is in Radharani's heart for Krishna. So when we are in the association of a saintly person like Maharaj, then, and when he's chanting Radhe Radhe, then he has that realization of Radha's Naam, pure Naam. And this sound, this vibration coming from the mouth of a saintly person is so blissful, powerful, and pure that it's going to touch, definitely, it's going to touch everyone's heart. So we are very fortunate that our Bhakti Vedanta Shri, our Gurudev's very near and dear sannyasi disciple, early age he came, very early age. Listen, please, this is very important. Then when we glorify a saintly person, Bhagwan is very much pleased. So Shripad Bhakti Vedanta One Maharaj is very elevated and very dedicated and very near and dear, fully ekantik, one-pointed, devoted to Srila Gurudev. And by the mercy and the blessing of Srila Gurudev, you can see you can see live that how this association is so powerful. So even this sadhu sang is very rare, very rare. And Gurudev said once, I just heard yesterday, that what saintly person gives us, it's unparalleled. Nobody can give. What is Tulsidas Ji has given us? What has he given us? What is Valmiki has given us? Have they given us any material things? Material objects? Any स्थूल कोई वस्तु दी है हमें? लेकिन they have given us such a powerful vichardhara and such a powerful teachings that if one accepts this, will be this life and life after life will be fully happy and pleased, happy. And no birth and death, no miseries. So this is what the saintly person give us. People say, why we need a guru, why we need a sadhu, we can ourselves reach to God. People generally say that. But Gurudev gives very beautiful example. Suppose there is something in China and you cannot go there. You don't have visa to go to China. But the thing that you need is available in China. And here we are in India. But the person living in Nepal, he can go to China and he can come to India. So we have to take the shelter of that person living in Nepal. If you want to get that thing right, it's very precious thing that you have to have it. So you have to take the shelter of someone who is living in Nepal. So in the same way, this Krishna Prem, this love for God is not available in this world. It's in the heart of pure devotees, living in the eternal abode of Bhagwan. So someone who comes from there, if someone comes from there, then only we can get it. Right? So that's why the saintly person, Pujyapad Shri Bhakti Vedanta One Maharaj, is traveling all over the world and preaching
only this pure love for Krishna, Uttama Bhakti, he is preaching all over the world. And we are very, 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 very fortunate that he has come here, not to take anything from us, but to give us very high thing, very precious. So I am we are very thankful to Shalini Didi, and more than that, we are very thankful to Maharaj and all his devotees, associates, that they are taking so much pain for us. Yes. For us, to benefit us. They don't come here to take anything from us. Their love, their compassion, their kindness, their mercy is totally unconditional. Unconditional. So we are very, very fortunate. I took a lot of time, but I pray to Maharaj that please bless us and with your Hari Katha, and please give us your mercy for always. So everyone please listen Maharaj's Katha, and you can come forward because there is no I will next time. I will next time. No, I have it back at the temple. In my suitcase, I brought one. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gurachandra Krishna Bhaktaya Sarvabhaktaya Vanchāvadurya Deva Sindhu Uditanam Pavanebho Vaishnave Guno Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita पूरा लेडीज सत्संग हिंदी का ही है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले गीता नित्य लाभ वेदांत शिलावाहन विष्णु महाराज एवं नित्य लाभ विष्णु विष्णुपाद आशुतर समान वेदांत समान विष्णु महाराज के चरण कमलों में अनंत करोड़ शास्त्रों धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णव एवं स्नेहसुधा मातृवृंद कवियों के चरण कमलों में मेरा जथा जथा धन्यवाद के नाम स्वीकार हो। बहुत आनंद की बात है। पिछले बार भी हम क्या नाम पता है, शालिनी दी के घर में हम लोग यहाँ पर आए थे। बहुत आनंद, उनके इतने स्नेह ममता प्रीति वही मुझे आकर्षण करके लाते हैं। स्नेह प्रीति जीवों के क्या करते, आकर्षित करते हैं, करते नहीं। जिस प्रकार देखो एक चुंबक जो है मैग्नेट किसको आकर्षण करते हैं, किसको खींच लेते हैं, लोहे को है, क्योंकि चुंबक में पावर है वो है। किंतु वही लोहे में यदि जंग लग जाए, जंग समझते ना, डस्ट लग जाए तो चुंबक उसको खींच नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जीव के हृदय निर्मल होने पर
स्वयं भगवान की तरफ वो आकर्षित हो जाता है, स्वयं भगवान उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। साधु संत महात्मा की जो आगमन जो होता है इसलिए कहा जाता है। जैसे अभी भी उदाहरण दे रहे हैं उन्होंने, जैसे कोई अच्छी वस्तु जो आप मानो चाइना में हुआ है, हम इंडियन है, चाइना नहीं जा नहीं पाएंगे, है चाइना के लोग इंडिया आ नहीं पाएंगे, अभी है ना सब रेस्ट्रिक्शन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट और चाइना गवर्नमेंट। भाई ये सब पॉलिटिक्स है, हम तो उसमें भी लेना देना नहीं है किंतु देखते हैं हमारे इंडियन पासपोर्ट हम इंडिया चाइना नहीं जा सकते हैं, और चाइना के भक्त लोग इधर आ नहीं सकते आज। तो अभी हम क्या करें, चाइना के भक्त से हम कैसे मिले और हम चाइना के भक्त के साथ कैसे मिले, आप बताओ कैसे मिलेंगे। तो ऐसे कई मिडिल पॉइंट हो जहां पर चाइना के भक्त भी आ जाए और हम इंडियन के भक्त में पहुंच जाए, है कि नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। जैसे हम चाइना के भक्त, हमारे चाइना के बहुत भक्त लोग है और उसके जो है इंडिया आ नहीं पाते, वो तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं, गुरुदेव हम क्या करें, कहाँ जाएं, सत्संग कहाँ मिले, वृंदावन कैसे, वृंदावन के भक्त कैसे मिले। तो मैंने कहा एक काम करो, आपके आसान से वीजा मिल जाता है मलेशिया में, इसलिए देखो चाइना के भक्त लोग कहां पर आ जाते हैं, मलेशिया में आ जाता है, और हमारे इंडिया हमें भी वीजा भी मिल जाता है कहां जाने के लिए, मलेशिया में। तो भक्त मिल गया कि नहीं मिला, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसी प्रकार देखो हम वैकुंठ में जा नहीं पाए, भगवत धाम में वृंदावन जा नहीं पाएंगे, गोलोक वृंदावन जा नहीं पाएंगे। तो गोलोक वृंदावन से गुरुदेव आए हैं, तो हम अति सहज रूप में गुरुदेव से मिल सकते कि नहीं सकते हैं। हम तो इस शरीर के द्वारा गोलोक वृंदावन जा नहीं सकते, जा सकते हो आप, नहीं जा सकते हो। किंतु देखो राधा जी के जो प्रियजन जो है रमन मंजरी जो है वो कहाँ आ गए है, देखो वृंदावन में आ गई, इधर है गुरुदेव आ गए, तो हम गुरुदेव के साथ रिसाज में मिल लेते हैं, और गुरुदेव हमें हरि कथा सुना आदि करके चित्त के निर्मल करा करके मेरे हाथ पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही है तरीका है, सच सरल तरीका है। इसलिए साधु गुरु वैष्णव की जो भ्रमण जो है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, किस लिए, जीवों के कल्याण के लिए है। ये उस आम साधु संत महासत्संग करें है, तब हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। इसलिए कहता है बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई, तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। जब प्रभु की कृपा, रामचंद्र की कृपा नहीं हो है, तो हम सत्संग कर नहीं पाएंगे, और सत्संग के द्वारा ही भगवान की हम प्राप्ति करेंगे है। क्योंकि अनेक जन्म की जो पाप आदि जो है, मैल जो है हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, इसलिए हम भगवान की तरफ भगवान को देख नहीं पाएंगे है। जैसे मैंने एक हिंदी प्यार बताते रहता हूं, मैल लागे तन से धोए जल से, मैल लागे मन से धोए कैसे, आप बताओ सच सरल है कि नहीं। मैल लागे तन से, शरीर में कोई मैल लग जाए, कीचड़ लग जाए, आप क्या करोगे बाबूजी, यानी पहले पानी से धोएंगे। अच्छा साबुन से, आप ठीक ही बोल रहे, जिसे करें मैल लागे तन से धोए जल से, जल से हम धो लेते हैं, और मन में मैल लागे तो धोए कैसे,
बताओ, प्रभु के नाम से। राम नाम के साबुन से मन के धोए, है राम नाम की साबुन, साबुन राम नाम की साबुन के द्वारा क्या करो, मन के धो लो। ऐसे कैसे धोगे भाई? बोले संत महात्मा के संग से। अपने आप धो नहीं पाओगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई, है? इसलिए सत्संग करना चाहिए। संत महात्मा के सानिध्य में बैठने कर में बैठो, थोड़ा हरि कथा सुन। संसार में तो काम सभी करते, करना तो पड़ता ही है कि नहीं? सब काम करते रहते हैं, किंतु उसमें थोड़ी सी समय है। हाँ, वो ठाकुर जी उधर गोपाल वहीं पर बैठे, हाँ देखो गोपाल जी कैसे झलमल झलमल कर रहे हैं। बत्ती भी लगा दिया ना, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ क्या बोला? सत्संग कर, बिनु इसलिए कहते हैं सत्संग है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तो हमें पता नहीं चलेगा भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी है, क्या करनी है, मन निर्मल कैसे होगा। इसलिए सत्संग, साधु संग है। हम इस संसार में मकान बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, किंतु समय आने पर उसको हम छोड़ करके चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम रे, है? ले ले रे कोई नाम, राम नाम का प्यारी, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं, लेकिन ले ले रे कोई राम का प्यार है। कृष्ण का प्यारे, राम का प्यारे, यही राम नाम कृष्ण नाम कोई ग्रहण कर ले लेते हैं और उसके जीवन सफल हो जाते। और क्या करना है, सभी जानते हैं। इस संसार में हम सब कुछ करते जा रहे हैं, किंतु जब समय आ जाता है आंख बंद हो जाता है कि नहीं? सभी हमारी एक एक करके पूर्वज चले गए, मेरे पिताजी चले गए, मेरे माताजी चले गए, एक 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 करके सब चले गए, और मैं भी जाने वाला हूं। कब तक प्रभु की इच्छा है। किंतु देखो, जाने के पहले एक सुंदर मकान बना लो, और जहां पर वहां ऐसे स्थान पर एक सुंदर मकान बनाओ, ये वहां पर अनंत काल के लिए है, वहां पर रहोगे, आना नहीं पड़ेगा। वो मकान कहां बनाना है बताओ? वृंदावन, भगवत धाम। चल रे मन वृंदावन है। वृंदावन में एक मकान बना लो, बस वहीं पर बैठ जाओ और कहीं नहीं जाना, नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनो। एक व्यक्ति था, बहुत सदाचारी था, दान पुण्य आदि भी करते थे, और अपने घर में रहते थे, अपने बेटा बहू सब परिवार के सब बहुत आनंद मस्त था, सब मस्त में रहते थे, तब आनंद, सब कुछ पालन पोषण करने लगे। देखो फिर जब उनकी समय वृद्ध आ गया, मन मन विचार करने लगे, ये कब तक मैं इस घर में रहूं, है थोड़ा बाहर चलता हूं। ऐसे विचार करके वो बाहर चल पड़े, है अपने गांव छोड़ करके दूसरी गांव में गए, दूसरी गांव से लेकर के दूसरी राज्य में प्रवेश किया, है उस समय छोटे छोटे राज्य था, स्टेट था, गए और उस राज्य में गए
उस राज्य एक अजीब था, जैसे सब लोग आकर के उनके पास आ गए। है बोले महाराज आप कहां से आए हो? बोले मैं इसी प्रकार इसी गांव से आया हूं, ऐसे ऐसे करके बताया। बोले महाराज हमारे इस गांव इस राज्य में जो आ जाते हैं ना, उसके हम 5 साल के राजा बना दे। 5 साल के लिए क्या बना देते हैं? राजा बना देते। क्या बना देते हैं? राजा बना। आप यहाँ पर कहीं जाने की जरूरत नहीं महाराज, है यहाँ पर आपके लिए खाना पीना सब कुछ व्यवस्था कर देंगे, है किंतु 5 साल के बाद आपको इस देश को छोड़ना पड़ेगा, है हम लोग दूसरे स्थान पर आपको ले जाएंगे। वो व्यक्ति विचार करने लगे क्या बात है, मैं थोड़ी राजा बनने के लिए थोड़ी आया हूं, है आप राजा बनने के लिए आए क्या? नहीं, आप बताओ। नहीं है। तो देखा वो लोग बोले 5 साल का राजा बना, अब के खाना पीना सारी कोई व्यवस्था की। वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान थे, फिर इंटेलेक्चुअल पर्सन था वो मन ही मन विचार करने लगे ये लोग मुझे इतने आदर स्नेह आदि क्यों करते हैं, क्यों खाना पीना और इतने सब व्यवस्था क्यों कर रहे हैं। और फिर तो बोल दीजिए 5 साल के बाद हमें इस यहां से वापिस कहां भेज देंगे बताइए। पता लगाया लोगों के अपने मंत्रियों के द्वारा पता लगाया, गुप्तचर होता है ना, है पता लगाया ये 5 साल के बाद ये लोग क्या करते, उस राजा के जो है एक जंगल में छोड़ देते हैं। अच्छा वो व्यक्ति बहुत चालाक था, उन्होंने क्या कि 5 साल तो उनके कितने साल रहना है उस स्थान पर? 5 साल के लिए। तो उन्होंने क्या कि ये 5 साल के अंदर में की जिस जंगल में छोड़ना है ना, जहां पर उसको छोड़ देंगे बोला है, वहां पर सुंदर एक मकान बना ली। किसी को पता नहीं चला, इस गांव के प्रदेश के किसी को पता नहीं है। वहां पर सुंदर एक मकान बना ली और लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घर मकान बना लिए, है। जब उनके 5 साल जब पूरा हो गया तो उधार देश के बोले महाराज आपको मैं उस स्थान पर लेकर जाना चाहता हूं। बोले कहां पर? उस जंगल में। वो तो बहुत चालाक थे, वो तो पहले ही क्या बना लिया, अपने मकान बना लिया। वो आनंद से ढोक ढाल करते हुए चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक इसके तात्पर्य क्या है, हम इस संसार में रह रहे हैं, ठीक है, भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है इसमें तो हम रह रहे, किंतु यहाँ पर रहते हुए हम वृंदावन के लिए एक मकान बना लेते हैं। तात्पर्य क्या है? भगवत धाम है। अरे भगवत धाम के लिए एक मकान बना लो, वहां पर चले जाओगे, इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। अरे भगवान के धाम में मकान कैसे बनाओगे आप बताओ? है यही नाम करते करते बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। है आज इसलिए भगवत धाम में हमें जाना पड़ेगा और इस संसार में आपको आना नहीं पड़ेगा। उस स्थान पर जाओ आपकी वो आप चिरा यौवन बना रहोगे। वहां पर कोई वृद्ध नहीं होता है, किसी के रोग शोक नहीं होता है। मैं जिस स्थान के लिए बात कर रहा हूं वो गोलोक वृंदावन धाम है। वहां पर जाओगे ना सब समय आप मानो 12 से 14 साल के लड़की व लड़का जैसे रहोगे। कितने? 12-14 साल। बहुत सुंदर, आपके शरीर सुंदर, देखने में सुंदर, ये स्थान ऐसे रहेगा। वहां पर कोई रोग शोक नहीं है। इस जगत में जरा व्याधि है कि नहीं है? बीमार हो जाते हैं कभी कभी, किंतु उस स्थान में जाओ कभी रोग शोक जरा व्याधि कुछ नहीं है। निर्मल स्थान है, नवयौवन है। अमृत भोजन करोगे, कथा गानम, वहां पर कथा जो बोलोगे ना बिल्कुल जैसे है गान, जैसे नित्य गीत के भांति होती चले। इतने सुंदर स्थान है। वहां पर ऐसे ऐसे सुंदर पेड़ जो है, वो पेड़ के कहा जाता है कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या वृक्ष कहा जाता है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष समझ में आया?
जो कल्पना करोगे, जो चिंता करोगे, वो फल दे देता है? यहाँ पर पेड़ है कि नहीं है? कुछ मांगने देता है क्या? नहीं, कुछ नहीं। किंतु देखो गोलोक वृंदावन में जाओगे, वहां पर पेड़ को मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दे देते हैं जो कोई जो। चिंता मणि प्रकार सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिरपालयन्तम् लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेवमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वो ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान है, बहुत आनंद आए। वहां पर सभी है, गोप गोपी गाय बछड़े सब कुछ है, परिवारजन सब आपको मिल जाए, है? आनंद आ जाए। इसलिए हम लोग कहते हैं चल रे मान श्री वृंदावन धाम। क्या बोला? चल रे मान श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में जाकर क्या करोगे? और एक जमुना के जल पान करोगे। वृंदावन गई आप कभी? अभी भी गई नहीं? अरे चलो कम से कम, है? ये विमला दीदी तो जाते हैं हर साल में 2। क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपके पासपोर्ट क्या है? तो अमेरिकन है, तो आप तो अमेरिकन पासपोर्ट नहीं जाओ, तो उससे क्या होता है? आप बॉर्न कहीं भी हो, उससे नहीं, पासपोर्ट होनी चाहिए। नहीं, आप ऐसे बात नहीं, आप कहीं भी, नहीं, आप इंडिया जा सकते हैं। आपके तो ये पासपोर्ट है ना, अमेरिकन पासपोर्ट है, इसलिए आपके वीजा लग जाएगा, है? वो तो आसाम से वीजा लग जाएगा, है? हमने 2 बार अप्लाई कहीं नहीं दिया। क्या बोले बोर्न इज पार्टी, क्या पता कुछ आपके करो, हम हिंदू हैं भाई, क्या करेंगे? ऐसे नहीं, और कोई रीजन होगा, है? बॉर्न है, हाँ, ऐसे बात है। हाँ, और कोई रीजन है, वो दूसरी बात है। और ड्यूअल सिटीजन है, और कोई रीजन होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, कहीं कोई बात नहीं, आ जाओ सब। ट्राई करते रहो। हाँ ट्राई करेंगे। हाँ, विमला दीदी के साथ आ जाओ। वो नवद्वीप भी ले जाएगी और वृंदावन भी ले जाएगी, सब जगह में ले जाती है। विमला दी के चरण को अच्छी तरह से पकड़ लो, छोड़ना मत। हाँ, बस उसके बोलो जब तक नहीं ले जाओ छोड़ेंगे नहीं पाए। हम कहते छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। क्या बोला? छोड़ना नहीं, क्या करो? जोड़ो। लोग कहते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो, मैं कहते छोड़ोगे क्या कर छोड़ोगे? सबके जोड़ो। है? हाँ, भगवान भक्त के साथ जुड़ जाओ, देखो आराम से चल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। है? इसलिए वृंदावन आ जाओ, बहुत आनंद। नवद्वीप धाम गए? आप गई नवद्वीप? अच्छा, ऑस्टिन, वो ये अमेरिका में वो है ऑस्टिन जो है। अच्छा, चलो धीरे धीरे तो चल रहे कहीं न कहीं। है? हाँ, नवद्वीप आनंद आ जाए। हाँ, आ जाओ। अभी हमारे वो भागवत हो रहे, इसमें क्या बोले, दरगाहपुरी में
बिल्कुल समुद्र के किनारे में, द्वारका में। 7th नवंबर, 7th नवंबर टू 13th नवंबर आफ्टर कार्तिक, द्वारका में। और इसके बाद हमारा नया जो टेम्पल जो है इनोग्रेशन होगा भुज में, वहीं पर भी भाग हो सकता है। बहुत अच्छा है, आइए आप लोग, है आनंद आ जाए। देखो मैं ये कहता हूँ, सच्ची मन से आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान व्यवस्था कर देगा। आज में सब हो जाए, क्यों नहीं होगा, सब होगा। केवल आपकी मन में देख, आपके दीजिए, मैं जाऊंगा बस गोविंद देव के दर्शन करना है। आ जाओ आप, माता जी आ जाना है, चलो मेरे साथ चलो, मैं तो जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, बस बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, है सब हो जाए, है राधे राधे बोलेंगे और वृंदावन में डोलेंगे, जानते कि नहीं है। मैं तो आयो वृंदावन धाम, सखी तेरी चरणों में, मैं तो रटो राधा राधा नाम, सखी तेरी चरणों में, मैं तो रटो राधा राधा नाम, सखी तेरी चरणों में। मैं तो आयो वृंदावन धाम, सखी तेरी चरणों में। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय हेलो राधे 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 राधे, अरे राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे। आप वृंदावन में जाओगे ना, वहां पर पक्षियां भी क्या बोलते हैं, सब राधे राधे बोलते हैं। गए नहीं कभी वृंदावन? अरे आप आ जाओ। आप क्या काम करते हैं? टीचर हूँ। आज चलो छुट्टी मिल जाए, आ जाओ। छुट्टी तो मिलते हैं कि नहीं मिलते? अच्छा ये मामी है, हाँ पाकिस्तान कहाँ है? अच्छा वो मेरे मामी है, ये इसके मामी। आगे कहाँ पर बैठी है? हाँ कहाँ है वो? तो 4 पुरुष यहाँ पर बैठे हुए, हे भगवान जय हो। हाँ 4 जनरेशन यहाँ पर बैठे हुए, हे भगवान। देखो कितना आपने सौभाग्य है। मामी है, मामी है, मामी है, बेटी है। देखो 3 जनरेशन, 4 जनरेशन। हम तो गुरु वर्ग भी ऐसे करते हैं। वाह, अच्छा कहाँ से? पाकिस्तान कहाँ पर है? हैदराबाद है। हैदराबाद तो इसमें है ना, चाइना इसमें पढ़ते हैं, इंडिया में। अच्छा अच्छा उधर हैदराबाद। अच्छा उधर पर इंडियन है लोग? हिंदू है। वो तो हिंदू के जो सब निकालते थे ना, क्या करते हैं? हाँ इसलिए, हाँ चलो आप प्रार्थना करो गुरुजी हमारे लिए, हमारा अमेरिका का हो जाए, हमारा केस ऑफिस ने मम्मी ने अप्लाई किया है हमारे लिए। अच्छा सब प्रार्थना करो ताकि हमारी फैमिली के लिए हो जाए, हम आ जाए। अच्छा सड़क में आ जाए। नहीं ठीक है, अच्छा है। बेटी भी तो आ गई नहीं? बेटी को 11 साल हो गई, हस्बैंड वाइफ आ गए। अच्छा यहाँ पे दोनों बच्चे भी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। चलो प्रभु के नाम लो, सब कुछ हो जाए, है? हाँ अच्छा लगा है। हाँ नहीं नहीं, सब सब कृपा है। हाँ
तो उधर मंदिर है कि नहीं? नहीं। मंदिर है गुरु जी, बहुत गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, अच्छा राधे कृष्णा के मंदिर है। एडाव में बहुत बड़ा मंदिर बना है, अच्छा। वहाँ जाते हैं। हर फ्राइडे एक मंथ में वहाँ सत्संग होता है, पूरे हिंदू आते हैं, हिंदू लोग आते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। और महाराज सतीश आते हैं वहाँ पे, इंडिया से हाँ सतीश महाराज। सतीश महाराज जाते हैं उधर? अच्छा अच्छा। सब घरों में जैसे आप सत्संग कराते हो वैसे सब पूरी ग्रुप आता है, सत्संग होते रहे, सब अच्छी बात। हर मंदिर में। मैं भी जाऊंगा एक बार। भले आइए, आप हमारे घर है ना गुरु जी, हाँ हम आपकी सेवा करेंगे, हमारे घर आ जाए। बहुत अच्छी बात। चलो महाराज जी, हो गया पाकिस्तान का। हाँ सब पाकिस्तान। हमें भी ले जाओ। हाँ, मतलब आप चलो, आपको बहुत उधर सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे। हाँ पहले बिमला दीदी के लेकर के जाओ, वो जाकर के पूरा बेसमेंट बना देंगे। हैं अच्छा रहेगी ना? हाँ वो जहाँ पर जाते है सबको वृंदावन वासी बना देते हैं। हाँ मतलब जय हो श्री राधे